तो जो हम लोगों ने अपनी एडवांस जावा की जो जर्नी शुरू की थी, वो बेसिकली शुरू किया था कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इंटरव्यू में जो है वो कितना पूछा जाता है, इससे कितने क्वेश्चंस आते हैं, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जावा 8 9 10 11 और अप टू द लेटेस्ट जो भी फीचर्स हैं उनके बारे में भी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी हैड स्टार्टेड टू लर्न वाज एक्सेप्शन हैंडलिंग, and in that exception handling we had seen errors, type of errors, exceptions and many more. So we had seen that what was the error. So it was a common mistake which was done by the developer while development, and it was of two types, like compile time error, runtime error. So we had seen the examples of compile time error that can be detected and displayed by Java compiler during the development itself, not running during the compile time itself. So in this case, if there is a compile time error, no dot class file will be created. So it is very necessary for us that before running the program, we must remove all the compile time errors. So we had seen what were the compile time errors we had seen, and we had tried to run all the files related to the exception handling also shared with you in the group. And we had seen that what was the mistakes, what are the common mistakes generally done by the developers, uh, so that the compile time error overcome. Then we had seen the runtime errors. In the runtime errors, we had also seen that what was the common runtime errors. For example, divide an integer by zero, and we had tried to run it, run the code. Then we came to exception. After error, we came to exceptions, and we had seen what many Java built-in exceptions. Okay, so some common exceptions were arithmetic exception, array index out of bound exception, array store exception, file not found exception, IO exception, null pointer exception, number format exception, out of memory exception, security exception, stack overflow exception, string index out of bound exception. Okay, so these were the common Java built-in exceptions. Then we tried to see each one of the exceptions one by one. That is for arithmetic exceptions we had seen. Then we had seen array index out of bound exception. That is, we are trying to access index of any array that is not available, and it may cause for us to get array index out of bound exception. Then we had seen the array store exception, that we are trying to store incompatible data type into any array, and it was throwing array store exception. Then we had seen file not found, that we are trying to access any file which is not available uh, in the file path during trying to open or to write that file. So if the file is not available in the given file path, we'll get file not found exception. After that, we had seen the IO exception, that is input output exception, which was of two types, checked exception, unchecked exception. That the difference between the checked exception and the unchecked exception is a very common question during the interview. Interview hit the direct question that what is the difference between the checked exception and unchecked exceptions in Java. So if any exceptions that can be handled in the code using try catch block, those comes under the checked exception. And if it cannot be handled by using try catch block, it comes under the unchecked exception. Then we saw the null pointer exception. Null pointer exception is very important topic, and with the help of null pointer exception itself, the interviewer can trap you in many ways. So null pointer exception is also very important. Then we saw number format exception.
We had seen the example of number format exception. Then we saw out of memory exceptions, security exception we had seen, stack overflow. Then we saw string index out of bound exception. These all we had already seen, and the related files, the program files was already shared with you. I hope you all have run that code and tried to modify it in different ways. So next we had seen that how we can handle the exception. So what happens is if exception hit, if the exception hit into the program, you just throw it. It can be handled in catch block. So we had seen the try catch block. We had seen the syntax of try. Try is the code where developer write their work to do, and then if any exception occurs, the catch block handle that exception. There can be one catch block, there can be more than one catch block, but the hierarchy that is maintained should must be taken care. And at last we had seen the finally. Finally is the area which always execute whether any error comes, any error, sorry, whether any exception comes or exception does not come, finally will always occur. We had seen multiple catch exception examples. Then we saw that if any statement that is written and it causes further exception, it is thrown by exception object and is handled in the catch block. Then we had seen that how we can write the try catch finally. We can write try and finally, that is not an issue. We can write try catch, that is not an issue. We can write try catch finally, all three, no issue. But if we'll write just try block, we will get compile time error. So please take care of these four pictures. These are the guidelines that how to use. It can be asked by you in the questions where they generally gives you code to to write the code. Whenever they gives you to write the code in the system on the screen, there they can say you that if I'll write this, what may happen. So we had some discussion about the try catch block. Then we had seen throw and throws, that where we use throw, that is we the throw is used inside of method and the throw is used as a part of signature, part of method signature. And we had seen the Excuse me, finally. sir. Yes, Nirupam. Sir, what is the throwable class? Throwable class. Uh, had we seen that throwable class in our classes? No, sir. What is actually they used for? Uh, Basically, the throwable class is the super class of all errors. Okay, and only the with the help of that throwable class only, the JVM used to throw the exception which is handled in the catch block. So the main thing you had to remember is throwable is the super class of all errors. I think I had shown you the hierarchy of the class throwable. I think it's coming in the next slides. It will come in the next slide. If it is not there, I will send you the hierarchy of the throwable classes. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Main thing is it is a super class of all the errors. So the next is we had seen some custom exception example also, the chain. Then we had seen the important question of Java exception handling. The and among all these, the Java built-in exceptions are the most important. Generally, they used to say that what are the Java built-in exceptions. Okay, so see, this is a throwable. This is the super class of all the exception and errors. You must remember this because by using this only you can use the multi-catch.
block. Then I had seen some, I had given some assignment I think. सी अब आप लोग जो है फिफ्थ और फोर्थ क्लास के या सिक्स्थ या टेंथ तक के बच्चे नहीं हैं। अगर कोई असाइनमेंट दी जाए तो आप लोग खुद से इनिशिएट कीजिएगा और उसे कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। देखिए आपकी स्ट्रेंथ में एक सेल्फ इनिशिएटिव, ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। अगर कोई सेल्फ इनिशिएटिव होता है तो सेल्फ इनिशिएटिव होना, सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होना, तो ये चीज़ें जो है वो आदत में एक दिन में नहीं आती। आपको धीरे धीरे करना पड़ेगा। और ये आदतें कैसी होगी? आपको जो टास्क दिया जाए उसको आपको सेल्फ इनिशिएट करते हुए आपको कंप्लीट करना। ठीक है। ओके, सो देन वी हैड सीन द कलेक्शन फ्रेमवर्क आफ्टर द एक्सेप्शन हैंडलिंग, and in the collection framework we had seen the different array list, then some examples of hash map. These were work to do for the 6 month as well as the 2 month internship batch. These were the project ideas that I had shared with all of you, that you can use these ideas, that is library management system, restaurant, WhatsApp messaging system, job searching websites, placement cell, online auction system, grocery store, vendor management system, blood bank proposal। बेसिकली जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, इसमें क्या करते हैं कि आप किसी लाइब्रेरी में उसके जो कुछ स्टाफ्स हैं उनको मैनेज करना, जो बुक्स आपके इन और आउट हो रहे हैं उनको मैनेज करने का, बुक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का, बुक्स इश्यू और रिटर्न जो हो रहे हैं स्टूडेंट्स को, उनकी डिटेल्स को स्टोर करने का काम जो है आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में करते हैं। और एट लास्ट आपके पास ये भी होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई एक पर्टिकुलर बुक 5 या 6 की क्वांटिटी में अवेलेबल है, काउंट में अवेलेबल है, तो कितने आपके इश्यू हो चुके हैं और कितने आपके पास अवेलेबल हैं, ये रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें हम लोग लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में करते हैं। एक रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम में जो है बेसिकली आपके पास अ, सबसे पहले तो रिसेप्शन होना चाहिए जहाँ से वो पता कर सके कि आपके पास क्या क्या मेन्यू है। ठीक है। मेन्यू के बाद आपके पास कितने स्लॉट्स चलते हैं मेन्यू के, लाइक ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, इनके बीच में आप इवनिंग में अगर आपके यहाँ स्नैक्स अवेलेबल होता है या नहीं होता है, किस टाइम पे क्या मेन्यू होते हैं। ठीक है। आपके कितने स्टाफ हैं, आज कितने स्टाफ अवेलेबल हैं, टेबल्स कितने हैं, काउंटर कितने हैं, ठीक है, आपके यहाँ सेफ कितने हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करने का क्या जो रेस्टोरेंट का एक पार्ट हो गया है वेंडर, कि आप वेंडर के थ्रू आपने क्या क्या चीज़ परचेज किया, कितनी क्वांटिटी में आपके पास अवेलेबल है चीज़ें। ठीक है। आप डिलीवरी होम डिलीवरी अलाउ करते हैं या डाइन इन अलाउ करते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें व्हाट्सएप मैसेजिंग सिस्टम का मतलब हो गया, जो मेटावर्स है आई थिंक, फेसबुक का जो था अब नया आया है, उसने कुछ ओपन एपीआई दे रखे हैं। उन ओपन एपीआई पे रजिस्टर करके आप अपने प्रोग्राम के थ्रू किसी को भी व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। लेकिन उसके जो है वो टेम्पलेट्स डिफाइंड होते हैं, जो फ्री टेम्पलेट्स होते हैं वो डिफाइंड होते हैं, कि वो कुछ डिफाइंड टेम्पलेट्स में ही आप किसी को मैसेज कर सकते हैं। उसमें आपका फिर वो आई थिंक नंबर नहीं दिखेगा, वो एक न्यू नंबर आपको मिलता है, और वही नंबर जो है वो डिस्प्ले होगा सामने वाले को जिसके पास मैसेज गया है। तो आप जो है व्हाट्सएप मैसेज भी आप सेंड कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के थ्रू, जैसे आप ईमेल और एसएमएस सेंड करते हैं। ठीक है। जॉब सर्चिंग वेबसाइट्स में आप लोगों को बताया गया था, मैं अभी जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपके 2 मंथ और 6 मंथ दोनों के लिए काम आएगा। ठीक है। जॉब सर्चिंग वेबसाइट्स आज के डेट में मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, monster.com, naukri.com, टाइम्स टाइम्स जॉब्स करके भी है। ठीक है। तो कई सारे अवेलेबल हैं। अब उन जॉब सर्चिंग वेबसाइट्स का क्या होता है, एक तो न्यू पोस्ट डालना, ठीक है, ओल्ड पोस्ट को हटाना, और अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल, जो प्रोफाइल है उसको शेयर करना उस वेंडर के साथ या उस कंपनी के साथ जो उस प्रोफाइल के बंदे को सर्च कर रहे हैं।
आपने कभी प्रोफाइल फिल करने का पेज देखा होगा जॉब सर्चिंग वेबसाइट्स का, तो मेन उसका वो है। ठीक है। प्लेसमेंट सेल का मतलब हो गया, यहाँ पे ये फीचर्स होने चाहिए कि आप अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग कंपनीज को आप अपने सिस्टम के थ्रू आप शेयर कर सके अपने डिटेल्स कि इस साल कितने स्टूडेंट पास आउट हो रहे हैं, उनके क्या क्या स्किल्स हैं, आपके पास कितने स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं जो इस साल पास हो रहे हैं, कितने प्लेस्ड हो चुके हैं, और जो प्लेस्ड हो जाते हैं उनको फिर नेक्स्ट में अलाउ करना है या नहीं करना है, ये सारी मैनेजमेंट ये प्लेसमेंट सेल का काम होता है। ऑनलाइन ऑक्शन सिस्टम में क्या होता है, देखिए कई बार क्या होता है कि बैंक्स बैंक्स सपोज आप में से कोई भी किसी ने सपोज कार परचेज किया, कार का आपने कुछ पार्ट जो है वो पे किया, बाकी पार्ट आप नहीं पे कर रहे हैं, आपकी जो ईएमआई है वो बार बार आपकी एब्सकॉन्ड तो नहीं कह सकते हैं, ड्रॉप हो रही है। एक ड्रॉप, इसके लिए एक और बेटर टर्म है बैंक फाइनेंस में, आपकी सपोज ड्रॉप हो रही है, आप ईएमआई नहीं पे कर पा रहे हैं, तो आफ्टर सम टाइम जो है आपकी जो भी प्रॉपर्टी है या आपका कार है, बैंक क्या करती है कि उसे अपने कब्जे में लेकर फिर उसकी नीलामी करती है। तो ऑनलाइन ऑक्शन सिस्टम इज लाइक ए नीलामी, ऑनलाइन नीलामी सिस्टम आप की तरह है कि आपके जो भी गाड़ी या प्रॉपर्टी है जिसका ऑक्शन होना है, उसकी डिटेल्स जो है वो शेयर की जाती है और लोग उस पर बिडिंग करते हैं। देखिए ऑनलाइन बिडिंग भी होती है और ऑफलाइन बिडिंग भी होती है। ऑनलाइन बिडिंग अलग चीज़ हो गई, ऑफलाइन बिडिंग में कोई एक प्लेस जो है वो निर्धारित किया जाता है जहाँ पर बिडिंग होनी है कि कोई एक पर्टिकुलर गाड़ी या प्रॉपर्टी जो है उसके सामने वाले जो है कितना प्राइस लगाता है। इसके लिए भी आपके गवर्नमेंट के वेबसाइट्स आपके अवेलेबल हैं, आप ऑनलाइन ऑक्शन सिस्टम साइट्स का सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। 1 सेकंड। देखिए ग्रोसरी स्टोर का मतलब हो गया कि आज के डेट में ग्रोसरी स्टोर छोटे लेवल पे भी, यानी स्मॉल लेवल पे, मीडियम लेवल पे और लार्ज लेवल पे अवेलेबल है। ठीक है, ग्रोसरी स्टोर रिलायंस का या ट्रेंड्स का जिसका भी है, आप एक बार कभी अगली बार जाइएगा तो आप कुछ खरीदने के पर्पज से जाइए या ना जाइए, आप उसकी मैनेजमेंट देखिए कि चारों तरफ क्या हो रहा है। ठीक है, स्टाफ कैसे मैनेज हो रहा है, कैसे बिलिंग हो रही है। ठीक है, कौन सा सामान है, हर एक सामान का अलग अलग जो है वो डिवाइड हो रखा है एरिया। ठीक है, कितने इनकमिंग्स में है, कहाँ कहाँ से वो किस किस वेंडर से वो परचेज करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ग्रोसरी स्टोर के बारे में आप लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिएगा। वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम, वेंडर देखिए अब वेंडर आपका डिपेंड कर रहा है कि आप अ, किस फील्ड से रिलेटेड वेंडर को करना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे कई बार होता है कि आपका सपोज मटेरियल मैनेजमेंट का है। ठीक है, आपके पास बुक्स, नोटबुक्स, पेन, कॉपी, पेपर, प्रिंटिंग, इन सब से रिलेटेड ट्रेडिंग अगर आप करते हैं, तो उसके लिए आपने कहाँ कहाँ से आप कितने इनपुट आप ले रहे हैं, कितने मटेरियल्स आप पुट कर रहे हैं, वो वेंडर का हो गया। या फिर दूसरा ये है कि सपोज कोई कंपनी, एक एग्जांपल आपको देता हूँ, थर्ड पार्टी वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो उस कंपनी में आप अपने डॉक्यूमेंट्स शेयर करते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, आप लोग कभी किसी कंपनी में जाइएगा अपना कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट प्लीज सबमिट मत कीजिएगा, जो ओरिजिनल हो वही कीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं है उसमें कुछ गलतियां हैं तो आप अभी सुधार करवा लीजिए, बट वहाँ पे क्योंकि अब जो है वो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन होता है, तो कंपनीज क्या करती है वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू, वो अलग अलग थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन जो आजकल कंसल्टेंसीज है उनको अपने यहाँ रजिस्टर करती है और उनसे शेयर करती है अपने डेटा को। अब इसमें आपने कहा कि सर वो तो कोई भी शेयर कर देगा, एक सिंपल फॉर्म बनना है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि एक ही स्टूडेंट के डेटा को चार अलग अलग पार्ट में चार अलग अलग वेंडर को दिया जाए। जैसे सपोज आपके यहाँ कोई एक स्टूडेंट, सपोज निरूपम है, निरूपम की जो है वो एड्रेस डिटेल किसी एक वेंडर को दे दी गई, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो दूसरे को दे दी गई, उसकी जो सर्विस रिकॉर्ड है वो तीसरे को दे दी गई। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग वेंडर्स को जब दिया गया और उन सब का जो फीडबैक जब आया, उसके बेसिस पे फिर आपका जो है प्रोबेशन पीरियड खत्म किया जाता है।
ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम का आज मैंने डिस्कस किया ही था कि ब्लड बैंक में कौन सा ब्लड कितने क्वांटिटी में अवेलेबल है, डोनर और एक्सेप्टर, ये दोनों चीज़ें जो है आप इनको कॉमन में कर सकते हैं। प्रोपोजल मैनेजमेंट सिस्टम भी मैंने कई बार डिस्कस किया है कि सपोज अगर किसी गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाली कि मैं किसी एरिया में, सपोज आजकल जैसे चल रहा है इथेनॉल, इथेनॉल फ्यूल या बैटरी ऑपरेटेड कार्स, इन सब के बारे में जो है वो कोई प्रपोजल निकालती है, ठीक है। तो लोग बिडिंग करते हैं, बिडिंग करते हैं कि इसमें इस फैक्ट्री में जो है मैं अपना ये पार्ट अपना देना चाहता हूँ, सेमीकंडक्टर का, अगर या इथेनॉल के लिए इन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, तो कौन कितना पार्ट दे सकता है। फिर या फिर सपोज कोई मोबाइल सेलर है, ठीक है, तो वो अगर सेल करना चाहता है इंडिया में, तो वो क्या करता है कि लाइसेंस लेगा इंडियन गवर्नमेंट से। तो वो इंडियन गवर्नमेंट को का एक प्रोफार्मा होता है कि आप इस प्रोफार्मा में अपने डिवाइस के बारे में आप अपने बताइए और वो सबमिट कीजिए। अगर वो टेस्ट रिपोर्ट और एक टेस्टिंग रिपोर्ट भी जाती है, अगर वो रिपोर्ट वैलिड है तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा। उसके बाद आप ऑल इंडिया में कहीं भी जो है आप सेल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। प्रपोजल मैनेजमेंट कई सिस्टम कई तरह के भी होते हैं, जो मैंने बताया वो एक एग्जांपल हो गया। इसी तरह से ऑर्फनेज मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। आजकल देखिए ये एक सोशल सर्विस वर्क भी हो गया कि अगर किसी को ऐसे बच्चे के बारे में जानकारी मिलती है जो खो गया है या जो इसका कोई नहीं है, ठीक है, तो कई ऐसे ऑर्फनेज हैं आज के डेट में अवेलेबल, जिनको आप अपनी साइट पर रजिस्टर, जो आपकी साइट जो आप साइट बनाएंगे उसके थ्रू वो रजिस्टर करेंगे, और उसके बाद आप उनको उस बच्चे की डिटेल दे सकते हैं जो खो गया है या जिसका कोई नहीं है। या फिर उस ऑर्फनेज से अगर कोई किसी को गोद लेना चाहता है, ठीक है, कई लोग होते हैं जिनके बच्चे अगर नहीं है, वो उस ऑर्फनेज के थ्रू, तो वहाँ वो देख सकते हैं कि हाँ यहाँ कौन कौन सा बच्चा अवेलेबल है, तो इस तरह से वहाँ विजिट का भी प्लान कर सकते हैं। एक अगला है मैरिज हॉल बुकिंग एक्सक्यूज सिस्टम। मी सर। यस निरुपम बताइए। सर पूछना था कि सर प्रपोजल मैनेजमेंट सिस्टम जो है, जैसे कि हम्म। उसमें अगर मान लेते दो कंपनी आपस में डील करना चाहती है, हम्म। तो हम सर प्रोजेक्ट में उसके कंपोनेंट्स को मतलब डिस्क्राइब करेंगे पीपीटी के थ्रू, कि मतलब वो कैसे काम करता है उस प्रोसेस को। न- जैसे कि कंपोनेंट्स मतलब कहने का मतलब है कि एक कंपनी का वो डिटेल्स स्टोर हो रहा है, फिर उसका वर्किंग जो क्या है वो सब की प्रोसेस सर हम डिस्क्राइब करेंगे, कि पहले वो लोग कांटेक्ट कैसे करेगा, फिर उन लोग का आगे मतलब क्या 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 रिक्वायरमेंट्स रहेगा जो वो लोग देखेगा, फिर मतलब प्रोसेस करना है कि सर कंपोनेंट करना है। नहीं देखिए, इसमें हर एक किसी भी इतने जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ना, इसमें सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारे सेंटर में कौन है, ठीक है। सेंटर में हम किसी एजेंसी को रखेंगे, ठीक है, अब वो इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी भी हो सकती है, प्राइवेट एजेंसी भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम मान कर चलेंगे कि कोई एक एजेंसी है या इंडियन गवर्नमेंट है, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरर को इस तरह से आप एग्जांपल ले लीजिएगा कि मेरे पास एक गवर्नमेंट के लिए मैं बना रहा हूँ, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर हैं उनको लाइसेंस देने का काम कर रहा है उनके प्रपोजल के बेसिस पे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि प्रपोजल के बेसिस पे या फिर जैसे गवर्नमेंट जो है वो स्कीम निकालती है कि एमएसएमई की स्कीम निकाली कि जिसके जिसके पास ये मशीनरी अवेलेबल है वो अपनी क्वांटिटी या प्रोडक्शन क्या है उस प्रोडक्शन के बारे में हमें बताए, ठीक है, तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट की तरफ से उसको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। इसके लिए आप एक काम कीजिएगा, MSIPS ये सर्च कीजिएगा आप, एमसिप्स, ठीक है, मॉडिफाइड स्कीम इंसेंटिव प्रपोजल सिस्टम, आप एमसिप सर्च कीजिएगा तो आपको प्रपोजल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। MSIPS नोट कर लीजिए, MSIPS ये इंडियन गवर्नमेंट की एक स्कीम है जो कि प्रपोजल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, बेसिकली ये उसी पे बनी हुई है, तो आपको उससे काफ़ी जानकारी मिल जाएगी प्रपोजल मैनेजमेंट सिस्टम की, ठीक है। निरुपम। सर लेकिन क्वेश्चन तो अभी भी वही है ना, कि सर मतलब जब हम प्रोजेक्ट पे जब हम सर मतलब कुछ करेंगे, हम्म। एक्चुअली सर मेरा ये भी क्वेश्चन है कि सर प्रोजेक्ट को डिस्कस अभी जो आने वाला वीक है उसमें करना है, या इन फ्यूचर सर जब पूरा पढ़ाई हो जाएगा उसके बाद हम इस पे नहीं बनाएंगे। नहीं 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 नहीं, प्रोजेक्ट जो है आपका पैरेलली में चलेगा, जब आप सारा चीज़ खत्म करेंगे तब तक तो टाइम लग जाएगा। प्रोजेक्ट का हम लोगों को फरवरी में क्लोज कर देना है बनाकर सारा कुछ।
ओके सर, मतलब ये ये अभी आने वाला टाइम पे नहीं होने ये वाला है, ये पैरेलल पैरेलली बस चलेगा। पैरेलली आपका डिस्कशन चलता रहेगा, बीच-बीच में डिस्कशन भी चलते रहेगा, बीच-बीच में पढ़ाई भी चलते रहेगी, ठीक है? और स्टेप वाइज़ हम लोग के जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फेजेज़ है, अभी हम लोग रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज़ में हैं। आप लोगों को पता भी नहीं चला, आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज़ में एंटर कर चुके हैं ऑलरेडी। तभी तो आपके साथ प्रोजेक्ट आइडियाज़ भी शेयर किए गए। आपको सर्च करने के लिए कहा गया नेट पे। छोटी-छोटी जानकारी आज आपको दी जा रही है। कुछ टाइम के बाद ऐसा आएगा, जैसे इस हफ्ते तो लास्ट वीक तो आपकी थोड़ी छुट्टी हो गई थी। अब आप फुल स्विंग में आ जाइए। फुल स्विंग का मतलब है कि आप अब डेली आपका कुछ-कुछ डिस्कशन होता रहेगा। जैसे आज मैं सबके बारे में थोड़ा-थोड़ा बता रहा हूँ। कल जो है इन डिटेल, तभी मैंने आप लोगों से कहा कि मैं देखिए इन सबको अगर बताने लगूँगा तो टाइम काफ़ी वेस्ट होगा। तभी मैंने आप लोगों से कहा था कि आप अपने आइडियाज़ मुझे शेयर कर दीजिएगा, या एटलीस्ट एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा कि सर मैंने ये 2 सब्जेक्ट चुने हैं। तो क्या होगा कि आपके जितने लोग हैं, उन्होंने जितने टॉपिक सिलेक्ट किए हैं, फिर मैं केवल उनके बारे में जो है यहाँ डिस्कशन करूँगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? ओके सर, एंड दिस क्वेश्चन सर सेम रहेगा सेमिनार के लिए मेरा, कि सर उसमें उस वक्त मतलब जब सेमिनार में रहेंगे तो उसमें पीपीटी में क्या करना है सर को, उसके कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे या उसके जो आपका टेक्नोलॉजीज हम लोग जो आपका उसमें यूज टॉपिक क्या करने आपका वाले हैं वो। टॉपिक क्या है सेमिनार का? नहीं, सर टेक्नोलॉजी पे यही अभी आपको नहीं प्रपोजल जाना है। मैनेजमेंट। अभी आपको टेक्नोलॉजी पे नहीं जाना है। अभी आपको सिर्फ डोमेन के बारे में सीखना है। जैसे मैंने जब लाइब्रेरी के बारे में बताया, तो लाइब्रेरी में ये था कि कितने बुक्स हैं अवेलेबल आपके पास, उन बुक्स के ऑथर कौन है, मतलब उनके बारे में क्या-क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है। आप एक काम कीजिएगा, आज आप जाके एमएस आईपीएस सर्च कीजिएगा, ठीक है? यस सर। आप जब एमएस आईपीएस सर्च करेंगे, तो कल हम लोग फिर से इस बारे में डिस्कशन करेंगे अगले क्लास में, ठीक है? कल सबसे पहले आपका प्रोपोज़ल मैनेजमेंट सिस्टम ही डिस्कस करूँगा मैं, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ठीक है, हाँ। आप परेशान ना हो, एक-एक करके देखिए इन सबको थोड़ा-थोड़ा बताऊँगा, टाइम वेस्ट होगा, और डिटेल में बताऊँगा और टाइम वेस्ट होगा। इसलिए जल्दी से आप लोग ये डिसाइड कीजिए कि आप लोग के, मैं आज शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, उसके बेसिस पे शायद आपको थोड़ी हेल्प हो जाए। नहीं हेल्प आप कर पाएँगे, अभी भी आप नहीं डिसाइड कर पाएँगे, तो हम लोग फिर थोड़ा और डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो छोड़ना नहीं है किसी चीज़ को, कोई चीज़ इंसान से बड़ा नहीं है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है दुनिया में जिस पे अगर मेहनत की जाए तो काम नहीं कर सकते हैं। ये हो सकता है कि हमें 2 घंटे की जगह पे 4 घंटे मेहनत करना पड़े, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, ठीक है? एक कोई मूवी आई थी ना माउंटेन मैन की, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है कि नहीं? तो ये आइडियाज़ भी वैसे ही है, इनको ब्रेक करना है स्मॉल चंक्स में, छोड़ना नहीं है कुछ भी, ठीक है? आप ऑलरेडी रिक्वायरमेंट गैदरिंग ओके फेज सर। में आ चुके हैं, ठीक है? तो अब थोड़ा-थोड़ा इन्फॉर्मेशन आज शेयर कर रहा हूँ क्योंकि क्लासेस भी लेना है आपका, अदरवाइज़ वो टॉपिक भी छूटेंगे, चीज़ों को बैलेंस करते हुए चलना है। हाँ, तो हम लोग थे मैरेज हॉल बुकिंग सिस्टम में। देखिए ये जो है ना आज के डेट में थोड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट चल रहा है। आपके होटल बुकिंग सिस्टम अवेलेबल है, बट मैरेज वेन्यू जो है वो बुकिंग सिस्टम आज भी वो ब्रॉड लेवल पे नहीं है। या अगर मैं कहूँ, अब जैसे आपके एरियाज़ में ही आप थोड़ा-सा सोच के देखिए कि आपके यहाँ कितने मैरेज हॉल बुकिंग सिस्टम है? अभी भी नहीं है। अभी भी शादी-ब्याह या कुछ भी हो तो उसका ऑनलाइन नहीं अवेलेबल है। आपको पर्सनली वहाँ जाना पड़ता है और आपको पता करना पड़ता है कि क्या रेट है, किस दिन की स्लॉट्स अवेलेबल है, ठीक है? आपको बार्गेन करना पड़ता है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती है आज के डेट में। तो इस चीज़ से बचने के लिए ही जो है ना धीरे-धीरे करके आने वाले टाइम में ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट बनने जा रहा है, जो मैरेज हॉल बुकिंग सिस्टम है। और ये आपके लोकल एरियाज़ पे भी चल सकता है ये साइट का आइडिया, और ब्रॉड लेवल पे भी चल सकता है, ठीक है? अगला है एम्प्लॉयी मैनेजमेंट सिस्टम। ये बेसिकली सर हाँ जी। सर ये ब्लड बैंक एप्लीकेशन दोनों के बारे में थोड़ा बता दीजिए सर। अच्छा, ये मिस हो गया क्या? अच्छा, ब्लड बैंक यस एप्लीकेशन थोड़ा को डोनर्स एंड एक्सेप्टर्स सिस्टम। देखिए, कुछ चीज़ें जो है यस ना सर जो यस। जब भी आपके साथ, हाँ, अभी उसके बारे में कर रहे हैं। ठीक है, तो मैरिज हॉल का हो गया ना। मैरिज हॉल में बेसिकली ये है, पहले इसको कर लेते हैं फिर ब्लड बैंक पे आऊँगा। मैरिज हॉल में क्या है कि इसमें आपके सिस्टम में ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि आपके आस-पास के जितने भी एरियाज़ हैं, उन मैरिज ब्यूरो उन सॉरी उन मैरिज वेन्यू के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होना चाहिए, कि उसका नाम इंटर करने उसका एक फॉर्म होना चाहिए जिसमें उसका नाम इंटर हो, उसका एड्रेस इंटर हो, उसका ईमेल इंटर हो, उसका कॉन्टैक्ट नंबर इंटर हो, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर इंटर हो, ठीक है?
उसके बाद उसको एक यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाए। जैसे ही वो यूज़र आईडी पासवर्ड लेकर वो मैरिज वेन्यू का जो रिप्रेजेंटेटिव है, अब उसको आप मैनेजर कह लीजिए उस मैरिज हॉल का, या कोई भी, किसी एक का लेके चलते हैं। सपोज़ किसी एक ने आपके साइट पर रजिस्टर कर लिया, लॉगिन कर लिया। अब लॉगिन करने के बाद वो फैसिलिटीज़ ऐड करेगा, ठीक है? फैसिलिटीज़ के बाद टाइमिंग्स ऐड करेगा। अब फैसिलिटीज़ में वो क्या-क्या ऐड कर सकता है, कि फैसिलिटीज़ में वो ऐड कर सकता है कि उसके पास नंबर ऑफ रूम्स कितने अवेलेबल हैं, ठीक है? नंबर ऑफ हॉल्स कितने अवेलेबल हैं, एयर कंडीशन्ड कितने हैं, नॉन एयर कंडीशन्ड कितने हैं, ठीक है? उनके पास जो हॉल्स है उनकी कैपेसिटी क्या है, कि एक हॉल जो है सपोज़ एक फ्लोर पे 20-20 लोगों के 4 हॉल हैं, दूसरे फ्लोर पे 40 लोगों के 2 हॉल हैं, और तीसरे फ्लोर पे जो है 1 हॉल है जिसमें 500 लोग बैठ सकते हैं। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ को ब्रेक करके इनपुट कराने की फैसिलिटी आपके सिस्टम में होनी चाहिए, ठीक है? दूसरी बात, वेज अलाउ करता है, नॉन-वेज अलाउ करता है। इसके अलावा केयरटेकर टीम उसके पास कितनी है, केटरिंग टीम उसके पास कितनी है, उन केटरिंग टीम की अगर वो एंट्री करना चाहे, कर सकता है। टाइमिंग्स वो कितने स्लॉट्स में चलाता है अपने यहाँ, या उसकी बुकिंग का टाइम क्या है। उसकी बुकिंग कई जगह ये फीचर होती है कि आप 12 बजे आइए, आप अगले दिन 12 बजे खाली कर सकते हैं। कई जगह ये होता है कि जितने बजे आएँ, अगले दिन उतने ही बजे कर सकते हैं। तो फिक्स्ड टाइमिंग है या वेरिएबल टाइमिंग है उस मैरिज हॉल की, ये होनी चाहिए, ठीक है? इसके अलावा कार पार्किंग की फैसिलिटी है कि नहीं है, टू व्हीलर की फैसिलिटी है या फोर व्हीलर की फैसिलिटी है, ये। इसके अलावा एक होना चाहिए करंट स्टेटस, कि करंट मंथ में इसके पास कितने-कितने दिन स्लॉट्स ओपन हैं। अब इस चीज़ को आप एक पूरे कैलेंडर के टाइप में दिखा सकते हैं कि अलग-अलग डेट में अगर कोई रेड है, तो मतलब रेड कलर का है वो डेट, तो मतलब वो अवेलेबल नहीं है। ग्रीन अगर दिख रहा है, मतलब वो अवेलेबल है, ठीक है? आप ग्रीन पे क्लिक करके लॉक कर सकते हैं उसको। जैसे ही लॉक किया, तो लॉक करने के बाद वो इन्फॉर्मेशन पहुँच जानी चाहिए उस मैरिज वेन्यू के पास, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें जो है आपको करनी पड़ेगी, कि एक तो हो गया कि जो मैरिज हॉल का जो हमारे मैरिज वेन्यू है वो रजिस्टर कर सके, और दूसरा जो उस मैरिज वेन्यू को बुकिंग करना चाहता है वो कस्टमर कर सके। तो यहाँ पे दो रोल हो गए, और एक एडमिन का रोल तो ऑब्वियसली रहेगा ही, ठीक है? अब हम लोग आते हैं ब्लड बैंक एप्लीकेशन फॉर डोनर्स एंड एक्सेप्टर सिस्टम। देखिए ये एक, एक्सक्यूज मी यस सर। यस यस कुलदीप बताइए। जैसे कि अभी हम लोग मैरिज हॉल बुकिंग सिस्टम देखे थे सर, तो सर हम लोग इसमें ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, जो जो मतलब बुक करना चाहते हैं, तो हम लोग उनको हर मंथ का शेड्यूल दिखा रहे हैं, लेकिन हम लोग जो भी मैरिज हॉल है उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं ना, कि अगर कोई आप उस इस मंथ इस डेट को आप मतलब एडवांस बुकिंग करना रहता है ना बेसिकली सर, तो उसी के अगर आप लिए, दो ये बुक उसी के लिए है, मैरिज हॉल बुकिंग सिस्टम एडवांस के लिए होती है, तभी तो कैलेंडर दिखाया गया कि इस मंथ या नेक्स्ट मंथ यस या सर। नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ में कौन सा डेट खाली है। हाँ सर, तो फिर हम लोग ऐसे ऑफर कर सकते हैं क्या सर, कि अगर आप दो ले रहे हैं तो आपको एक रूम एक्स्ट्रा मिलेगा, या फिर आपको इतना कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, तो ऐसा वो कुछ भी जब कर सकते हैं कस्टमर क्या सर? देखेगा कि इस स्लॉट पे खाली है, तो जैसे ही उसने ग्रीन वाले डेज पे क्लिक किया, तो नेक्स्ट फॉर्म यस उसके सर। पास ओपन हो जाना चाहिए कि आप रूम किस टाइप का लेना चाहते हैं, एसी, नॉन एसी। सपोज उसने एसी ले लिया, या उससे भी पहले आप ये ले सकते हैं कि फॉर हाउ मेनी पर्सन्स, कितने पर्सन के लिए आप करना चाहते हैं। ये देखो एक लेमन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, ब्रॉड आइडिया में। जब यस एप्लीकेशन में जाएंगे तो अलग वर्ड्स हो सकते हैं। वो आप सबसे पहले पूछते हैं ना, जैसे आप नॉर्मल देखिए किसी भी चीज़ को अगर आप एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं ना, तो उस एप्लीकेशन बनाने के पहले सोचिए कि अगर आप खुद जाके उस काम को करते तो कैसे करते, ठीक है? कैसे करते यस आप? सर। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि मुझे मेल भेजना है, ईमेल भेजना है, ठीक है? तो आप ऑनलाइन को छोड़ दीजिए। जब आप पहले ऑनलाइन ईमेल की फैसिलिटी नहीं थी, तो आप पहले पहले कैसे करते थे? आप एक पेपर लेते थे या पोस्ट कार्ड या कुछ भी लेते थे, उस पे जिसको भेज रहे हैं, उसकी डिटेल होती थी, ठीक है? उसके बाद किस लिए भेज रहे हैं, कई बार सब्जेक्ट भी होता था। उसके बाद आप डिटेल लिखते थे नीचे, और कहाँ से आया फिर लिखते थे। यही चीज़ अब जब आप ईमेल में कर रहे हैं, जब उसने उसको ऑनलाइन बना दिया, तो आप क्या करते हैं, टू में उसको उसका ना उसकी ईमेल आईडी देते हैं जिसको आप भेज रहे हैं, सब्जेक्ट लिखने का आता है फैसिलिटी, क्या कंटेंट है, किस बारे में कर रहे हैं उसके लिए जगह होती है, और लास्ट में अगर आप उसके साथ और पेपर ऐड करना चाहते हैं, कंटेंट और ज़्यादा देना चाहते हैं, वो अटैच करने की फैसिलिटी है। लास्ट में आप सेंड करते हैं, सेंड का मतलब आपने पोस्ट बॉक्स में डाल दिया।
तो जो आप ऑफलाइन करते हैं उसी चीज को कंप्यूटराइज करना जो है वो प्रोजेक्ट कहलाता है। तो मैरिज हॉल बुकिंग सिस्टम में अगर आप जाते हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं कहीं अगर गया तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि वो सबसे पहले सामने वाला क्या पूछेगा कि आप कितने लोगों के लिए देख रहे हैं, ठीक है, किस समय का देख रहे हैं, एसी रूम देख रहे हैं, नॉन एसी रूम देख रहे हैं, गाड़ी पार्किंग की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, ठीक है, किस तरह के फूड आइटम के लिए देख रहे हैं। इसके अलावा टाइप ऑफ फंक्शन क्या है, जैसे मैरिज है तो फिर कितने दिन के लिए आप लेना चाह रहे हैं, बर्थडे है तो हो सकता है एक एक दिन में, अब बर्थडे है तो एक दिन में भी अलग अलग स्लॉट दिखा सकते हैं, समझ रहे हैं। अगर शादी है तब तो यस 2-3 दिन का स्लॉट होगा, लेकिन अगर बर्थडे है तो बर्थडे तो सेम डे में ही 3-4 स्लॉट्स का वो काम कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह यस से आप सोचिए, मतलब अंदर ही अंदर आप दिमाग में मतलब उसकी इमेज बनाइए आप, उस इमेज को फिर आप पेपर पे ड्रॉ करके फिर आप प्रोजेक्ट को जब बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया बनेगा। और उसके बनने के बाद हो सकता है कि आपका साइट जो है वो मार्केट के लेवल पे कॉम्पिटिटिव ना हो, लेकिन जब आप खुद सोच कर बनाते हैं ना, तो वो जो बनकर आएगा और उसकी वजह से आपके अंदर जो एक नई स्किल जनरेट होगी चीज़ों को एनालाइज करने की, वो बहुत काम है, ठीक है। देखिए, हमेशा ना लर्निंग बाय डूइंग का प्रयास करना चाहिए, मतलब चीज़ों को देख कर खुद करके सीखने की कोशिश कीजिए। आज किसी और ने आपका प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है, या सपोज किसी ने भी, आपके किसी और दोस्त ने आपने बना दिया, कॉलेज में दिखा दिया, लेकिन उसके बाद क्या, क्या जिंदगी भर आप किसी ना किसी दोस्त से ही बनवाते रहेंगे? क्या जिंदगी भर कोई ना कोई आपके लिए खड़ा रहेगा? कभी तो एक टाइम आएगा जब आपको अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए साथ साथ चलते रहिए, डिस्कशन में पार्टिसिपेट कीजिए और खूब सर्च कीजिए। आजकल तो नेट की दुनिया इजीली अवेलेबल है, अब वो टाइम नहीं है कि लोगों को लाइब्रेरी में जाके 10-15 किताब एक साथ खोल कर वन बाय वन कंपेयर करना पड़ता था। अब तो चीज़ें इंटरनेट की दुनिया है, कहीं भी बैठ के सीख सकते हैं, कहीं भी बैठ के सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अपने किसी यस सर अपने किसी दोस्त को साथ में ले लीजिए, ठीक है, ज़रूरत पड़े तो उसको थोड़ा लालच दे दीजिए कि भाई चल आज 2 समोसे खिलाता हूँ, लेकिन मेरे साथ बैठ के ये डिस्कशन कर, ठीक है। तो स्टूडेंट लाइफ में तो देखो ऐसा ही होता है, स्टूडेंट लाइफ में क्या, कभी भी कोई आपको आपके लिए टाइम नहीं देगा, आप हमेशा याद रखिए। जब तक सामने वाले का कोई काम आपसे नहीं है, वो आपको टाइम नहीं देगा। दुनिया आज के डेट में बहुत प्रोफेशनल हो गई है, ठीक है। तो आपको उसी हिसाब से काम निकालना आना चाहिए, ये भी एक स्किल है, ये भी एक स्किल है कि आप अपना काम कैसे निकलवाते हैं। खैर, तो हम लोग कहाँ थे, ब्लड बैंक एप्लीकेशन फॉर डोनर्स एंड एक्सेप्टर सिस्टम में। तो ब्लड बैंक एप्लीकेशन अगर मेरा बनेगा, इमेजिन कीजिए कि आपको किसी एक समय में, ठीक है, सपोज मेरा एक फ्रेंड है, उसके फैमिली कोई मेंबर जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, अब उसे ब्लड की ज़रूरत पड़ गई, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, वो सबसे पहले ये देखेगा कि मेरे नियर बाई में कौन सा ब्लड बैंक अवेलेबल है, ठीक है। तो यानी कि आपके साइट में ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि अगर कोई जिप कोड दे या एड्रेस दे तो नियर बाई जो है वो दिखा सके कि इतने इतने ब्लड बैंक अवेलेबल हैं। तो वो ब्लड बैंक आप कैसे दिखाएंगे, जब तक उन ब्लड बैंक का रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने उससे डिटेल नहीं लिया हो कि आपकी लोकेशन क्या है, आपका जिप कोड क्या है, आपका एड्रेस क्या है, उसी को फिल्टर करके तो आप दिखाएंगे, है कि नहीं। तो इसका मतलब आप देखिए यहीं से 3-4 चीज़ें आ गई। पहली चीज़, ब्लड बैंक को सर्च करने की फैसिलिटी। दूसरी चीज़, ब्लड बैंक को रजिस्टर कराने की फैसिलिटी। रजिस्टर कराते वक्त भी उसका एड्रेस, उसका लोकेशन, ये सारा चीज़ उससे गेट करना, ठीक है। तो ये हो गया। अब जब आपने ये देख लिया कि मेरे नियर बाई में कोई अवेलेबल है, अब आप क्या देखेंगे, क्या सर्च करेंगे आप अगला, आगे क्या सर्च करेंगे कुलदीप? सॉरी सर हाँ यस सर कुलदीप, कुलदीप देखो, मुझे एकाएक जो है ब्लड की ज़रूरत पड़ गई, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये यस देखूंगा कि मेरे नियर बाई में ब्लड बैंक कौन सा है, यस ठीक है। सर अब मुझे ब्लड बैंक भी मिल गया, अब मैं क्या नेक्स्ट सर्च करूँगा, नेक्स्ट जो मेरे माइंड में सर सबसे पहले आएगा वो ये कि मुझे जिस ग्रुप की ज़रूरत है ब्लड ग्रुप की वो अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। यस सर ठीक है, अब उस ब्लड ग्रुप का भी अगर मिल गया तो कितने दिन पुराना है और कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है इस चीज़ के लिए, ठीक है। देखिए, आपके प्रोजेक्ट में
अगर आप सिंगल काम कर रहे हैं, 3 से 4 मॉड्यूल, देखिए 3-4 मॉड्यूल तो वैसे ही कॉमन होते हैं, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, रिपोर्टिंग, ठीक है? इसके अलावे 2-3 मॉड्यूल अगर आपके और हैं, जिसमें आप CRUD ऑपरेशन कर सकते हैं, तो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट है, आपका प्रोजेक्ट रेडी है, ठीक है? बाकी उसको फिर थोड़ा-सा उसका डिस्प्ले कर सही करने का तरीका, जैसे आपने चार्टिंग्स के थ्रू डिस्प्ले कर दिया, हाई चार्ट का यूज़ करके, एक बार हाई चार्ट भी हम लोग देख लेंगे कि हाई चार्ट के थ्रू अलग-अलग तरह के चार्ट्स कैसे बना सकते हैं। तो उन चार्ट्स के थ्रू आपने डैशबोर्ड दिखा दिया सुंदर सा एकदम, ठीक है? बहुत बढ़िया सा डैशबोर्ड दिखा दिया, तो आधे लोग तो वहीं पे इम्प्रेस हो जाते हैं, जो इंटरव्यू की टीम, जो आपके प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन की टीम होती है, कि इसने जो है वो चार्टिंग्स वगैरह का यूज़ करके बहुत अच्छे से डेटा को डिस्प्ले किया, ठीक है? तो 3-4 चीज़ें तो वैसे भी कॉमन है इन सारे में, इन सब में जितने आप सामने देख रहे हैं, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, इसके अलावा रिपोर्टिंग और एनालिटिकल चार्ट, ये 4 तो कॉमन है हर एक में, ठीक है? बाकी सब में फिर आपको डोमेन स्पेसिफिक 3-3 मॉड्यूल, 2-2 मॉड्यूल आपको रखने पड़ेंगे। जैसे मैरिज हॉल वाले में मैरिज वेन्यू रजिस्ट्रेशन का, कस्टमर का और सर्चिंग का 3 मॉड्यूल हो गया, काफ़ी है। ब्लड बैंक में क्या हो गया? ब्लड बैंक डोनर के रजिस्ट्रेशन का, ब्लड बैंक एक्सेप्टर के रजिस्ट्रेशन का, और ब्लड बैंक अगर कोई वहाँ सर्च कर रहा है तो उसके लिए, और जो डेटा आपके पास अवेलेबल है उसको बिल्कुल सही खूबसूरत तरीके से ग्राफ या चार्ट के फॉर्म में डिस्प्ले करना। ये 4 चीज़, प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है? इसी तरह से आपके ग्रोसरी हो या ऑनलाइन ऑक्शन हो, सब में बेसिकली यही होना है। मैक्सिमम 6 से 7 मॉड्यूल प्रोजेक्ट कंप्लीट, उसमें भी 4 मॉड्यूल आपको कॉमन मैंने बता दिए, बाकी 3 डोमेन स्पेसिफिक हो जाते हैं, ठीक है? अगला है आपका एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम और कुछ नहीं, जो आपका एचआर का टीम, ह्यूमन रिसोर्स की टीम करती है कि हायरिंग करना, और फिर उसके अगर कोई रेजिग्नेशन पे है तो उसका नोटिस पीरियड करने का, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, आपको अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, कितने स्टूडेंट हैं, कौन से सेमेस्टर में हैं, कब एडमिशन हुआ, कब पास आउट होंगे, हर एक सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट में अपीयर हुए, कितने मार्क्स आए हर एक सब्जेक्ट के, पास हैं, फेल हैं, ग्रेड क्या है, ओवरऑल पास हुए कि नहीं हुए। तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करने का काम जो है वो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में आ गया। बैंक मैनेजमेंट सिस्टम में आपके कस्टमर को जो है वो रजिस्टर करने का काम, उनको लोन प्रोवाइड करने का काम, विड्रॉ कर सकें, डिपॉजिट कर सकें, अपना बैलेंस देख सकें, ठीक है? और प्रोफाइल मैनेजमेंट अपनी कर सकें। अब उसमें अलग तरीके से आप एज रिवॉर्ड पॉइंट ऐड कर दीजिए या उसके क्रेडिट कार्ड ऐड कर दीजिए। आप जो लॉगिन करके देखते हैं ना किसी एप्लीकेशन में, आज उसको थोड़ा अलग व्यू से, एनालिसिस व्यू से सोचिएगा, कि अगर मुझे किसी एप्लीकेशन ने लॉगिन करने दिया है, किसी बैंक ने मोबाइल ऐप में मुझे लॉगिन करने दिया, तो क्या क्या फैसिलिटी दे रहा है, उनमें से कितनी कितनी फैसिलिटी को मैं समझ पा रहा हूँ और अपने प्रोजेक्ट में उसे इंक्लूड कर पाऊंगा, इस तरह से। लोन मैनेजमेंट सिस्टम इज पार्ट ऑफ बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, इसको आप अलग भी कर सकते हैं। आजकल लोन लोन डिपार्टमेंट अलग भी होता है, ठीक है? जिम लोकेटर भी बहुत अच्छा एक आप आज के डेट में चल रहा है। ई लर्निंग में जैसे ये है कि ई लर्निंग में देखिए 2 पार्ट हो गए, एक तो जो ट्यूटर हो गया वो, और एक जो स्टूडेंट हो गया। ट्यूटर क्या करेगा? अपने कोर्सेस उस पे पब्लिश करेगा। अब जैसे मैं हूँ, मैं अगर जावा का ट्यूटर अगर हूँ, या मैं बूटस्ट्रैप का ट्यूटर हूँ, डीबीएमएस का हूँ, या फुल स्टैक का हूँ, ठीक है? तो जो फुल स्टैक का रहेगा वो अलग अलग तरह के कोर्सेज उसमें ऐड करेगा, ठीक है? उन कोर्सेज की आप एक की मेंटेन करेंगे, कि अगर किसी ने जावा सर्च किया तो ये दिखाना है, बूटस्ट्रैप सर्च किया तो इस वाले का दिखाना है, ठीक है? अच्छा, आप और क्या दिखाएंगे? स्टूडेंट आया, उसने सर्च किया, उसने इन्वॉल्व हो गया, तो इन्वॉल्व होने के बाद उसके कंटेंट को डिस्प्ले करना, वो सारे दिन अटेंडेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लास्ट में उसको जो है वो सर्टिफिकेट उसको पब्लिश उसको जनरेट करके देना, इसके अलावा उससे फीडबैक लेना, और उस फीडबैक के बेसिस पे अगर कल को कोई सर्च कर रहा है तो जिसको मैक्सिमम स्टार मिले हैं, जिसका फीडबैक सबसे अच्छा है, उसको सबसे टॉप पे दिखाना। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आती है। दो मेन इंपॉर्टेंट क्या हो गया इसमें, एक तो ट्यूटर जो अपने कोर्स पब्लिश करेगा, और एक स्टूडेंट जो इन्वॉल्व करेगा, ठीक है? ट्यूटर इसके अलावा अलग अलग तरह के, अब देखिए ट्यूटर जब ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में अपने आप को रजिस्टर करेगा, तो वहाँ पे वो क्या देगा? अपना नेम, एड्रेस, एक्सपर्ट इन सब्जेक्ट, इसके बारे में देगा, ठीक है? क्योंकि अभी हम उसका पहले लॉगिन बना रहे हैं, कॉमन कोर्सेज बाद में ऐड करेंगे। पहले ट्यूटर को ऐड कराने का फैसिलिटी, फिर कोर्सेज को ऐड करने का फैसिलिटी,
फिर स्टूडेंट के लिए इन्वॉल्व होने की फैसिलिटी। तो मेनली ये 3 चीज़ तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। अब आते हैं वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम में। आप लोगों को पता नहीं इसकी जानकारी है कि नहीं है। एक ओपन एपीआई है वेदर फोरकास्टिंग के लिए। उस ओपन एपीआई पे अगर आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अगर देते हैं, मैं वो यूआरएल शेयर कर दूंगा, आप लोग सर्च करके देखिएगा उसको, ठीक है। अगर आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आप उस यूआरएल पे सर्च करते हैं, वो ओपन एपीआई है। ओपन एपीआई का मतलब हो गया कि कोई भी उसको यूज कर सकता है अपने प्रोजेक्ट में, और जो डेटा आ रहा है, डेटा जेसन फॉर्मेट में आता है और एक्सएमएल में आता है, ठीक है। तो जेसन फॉर्मेट में जब आएगा तो उस डेटा को फिर आप किस तरह से डिस्प्ले करते हैं अपने पास, वो देखने का तरीका, ये होता है वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम। अगर कोई आज से 5 दिन पहले देखना चाहे, या आज देखना चाहे कि अभी यहाँ बैठे बैठे मैं देखना चाहूँ कि नागपुर में क्या वेदर है, केरला में कैसा है, तमिलनाडु में कैसा है, तो इन सबको मतलब वेदर के डिटेल्स के बारे में गेट करना जो है वो वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया। इसमें आप सामने वालों को कन्विंस करने के लिए कई चीज़ें होती है। आपने जेसन की पढ़ाई करी, जेसन के डेटा एक्सट्रैक्ट करने और डिस्प्ले करने के लिए ग्राफिकल फॉर्मेट में दिखाते हैं आपको हाई चार्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, या कोई भी एक चार्ट मैनेजमेंट सिस्टम का, ठीक है, चार्टिंग एपीआई का। बेसिकली आप ओपन एपीआई यूज करते हैं, सामने वाले को कन्विंस कर सकते हैं कि इनकी, तो सामने वाले को लगता है कि नहीं, इस बंदे को सिर्फ डोमेन्स या जो मार्केट में है उसकी नॉलेज नहीं है, एपीआईज के बारे में भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। उसी तरह से न्यूज़ फोरकास्टिंग सिस्टम भी है। न्यूज़ फोरकास्टिंग सिस्टम में भी आपको एपीआई ऑलरेडी बनी हुई है कि टाइम्स के, आज तक या अलग अलग जगहों के कहाँ की न्यूज़ आपको डिस्प्ले करनी है, आप न्यूज़ भी डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके लिए भी ओपन एपीआई बनी हुई है। मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, ठीक। हाँ हाँ, बोलो क्या हुआ। मेरे को अभी टाइम लग जाएगा यार, बोल दो। मेरे को टाइम लग जाएगा आधा घंटा, मैं कुछ काम कर रहा हूँ अभी। कोई नहीं, जाने दो ना, जाने दो ना, कोई बात नहीं। हाँ, मैं बाद में चला जाऊँगा। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन, ठीक है। तो ये देखिए 5 10 20 मिनट का हम लोगों ने यहाँ डिस्कशन किया है। आप लोग अब जाके इस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए और इन आइडियाज़ के बारे में, और अपने लिए एटलीस्ट 1 या 2 टॉपिक सिलेक्ट करके बाकी को बिल्कुल भूल जाइए, फिर केवल उस 1 2 टॉपिक पे लग जाइए, ठीक है। तो उस, एक्सक्यूज मी सर। हाँ यस निरूपम बताइए। सर आप जो वेबसाइट बना बताए थे NSIPS सर, वो तो कुछ ये नेवी वाला कहा गया है सर, वो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, नेवी स्टैंडर्ड इंटीग्रेटेड पर्सनल सिस्टम। नॉट एन, एम, एम फॉर मंकी, एम फॉर मैन, अच्छा ओके सर, सॉरी सर। ठीक है। एम सिप्स, एम एस, मैं उस पर लिख दूंगा आपको। 1 मिनट मैं लिख ही देता हूँ उस पर, ग्रुप पे देखिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने ग्रुप पे पोस्ट कर दिया उसका नेम, आप सर्च कर लीजिएगा। ओके, सो सर नेक्स्ट उसको सर्च करने के बाद सर मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम आ रहा है सर, वो प्रपोजल सिस्टम का तो कोई भी ऑप्शन नहीं। हैश सेट क्लास देखा था, और हैश मैप के बारे में हम लोग को जानकारी दी थी। नेक्स्ट मैप इंटरफेस देखा था, ठीक है। मैप इंटरफेस के बाद कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स थे जो आप लोगों को जस्ट स्टडी पर्पस के लिए दिए गए थे, और बताया गया था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्लाइड्स आपके ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लाइव यूआरएल आप लोगों से शेयर कर दिया गया है, आप लोग देखिएगा ज़रूर, ठीक है। इस पूरे स्लाइड का एक वीडियो बनाकर आपको यूआरएल बीच बीच में शेयर कर दिया जाता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नया वीडियो आए तो आपको पता चल जाए, या अगर कोई एक किसी एक को जानकारी होती है तो बाकी सब में ज़रूर शेयर कर दीजिए कि कोई आ गया है अब वीडियो, उसको एक बार देख ले। देखिए कलेक्शन फ्रेमवर्क ने हम लोगों ने जितना पढ़ा था, उसके आगे का जो है वो स्ट्रीम एपीआई के थ्रू हम लोग जावा 8 का जब फीचर पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, उसके उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस। नेक्स्ट आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आपके प्रोजेक्ट में भी काफ़ी काम आएगा, वो है फाइल हैंडलिंग, ठीक है। समझते हैं इसको, फाइल हैंडलिंग के बारे में। फाइल हैंडलिंग बेसिकली क्या है, इस चीज़ को समझिए, ठीक है। नया टॉपिक शुरू हो रहा है,
अगर किसी को रेस्ट लेना है 5 मिनट का 2 मिनट का ले सकते हैं। कंटिन्यू करें? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। देखिए फाइल हैंडलिंग के आप लोग ऑलरेडी जावा पढ़ चुके हैं मोस्ट एंड मोस्टली सभी लोगों ने कुछ ना कुछ फाइल फाइल हैंडलिंग पे काम भी किया होगा। आज हम लोग उसी चीज़ को थोड़ा एक स्टेप वाइज देखेंगे एंड विल सी कि हाउ डू वी हैंडल द फाइल बाय यूजिंग जावा, how to write into a file, how to read data from a file, which class is better with respect to performance that we must use while doing file handling in Java. Okay. Then we'll also see how to check if any file is existing or not. We'll see different kind of operations. Okay. And we will also see how to make zip file or non-zip file. सर स्क्रीन विजिबल नहीं है आपका। Is it visible now? यस सर। Okay, sorry for the interruption. Okay, so what is a file handling and why do we use file handling? आखिर हमें फाइल की ज़रूरत पड़ी क्यों? जब हमारे पास ऑलरेडी अरेज हैं, जब हमारे पास ह्यूज नंबर ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए वी हैव कलेक्शंस, then why do we need this file? So the what happens is, if you are working with array or collections and if your program terminates, then all the data that had been stored into that array or into the collection that is lost. So to overcome the problem of data loss, we use file. अगर हमारे पास हम लोग को कोई प्रोग्राम रन कर रहे हैं, एरे का यूज कर रहे हैं, कलेक्शन का यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आ रही है? जैसे ही प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ, आपने जितना भी डेटा है वो सारा लॉस हो जाना है। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए कि हमने प्रोग्राम वाइल रनिंग द प्रोग्राम जो डेटा हम लोगों ने फीड किया, जो डेटा हम लोगों ने एंटर किया, जो डेटा हमने इन फॉर्म ऑफ इनपुट दिया प्रोग्राम को और उससे रिलेटेड कुछ जो आउटपुट स्क्रीन पे मिला, उसको हम परमानेंटली स्टोर कर सकें, उसके लिए हम लोग फाइल हैंडलिंग का यूज करते हैं जावा में। ठीक है, अब द डेटा स्टोर्ड यूजेज कंसेप्ट ऑफ फाइल्स। अब देखिए फाइल क्या है? जो भी डेटा आपने इनपुट के फॉर्म में दिया, ठीक है, या तो उसको जहां पर हम स्टोर कर रहे हैं उसे हम कहते हैं फाइल। ठीक है, उसे हम लोग परसिस्टेंट डेटा भी कहते हैं। याद रखिएगा, कभी कभी लोग पूछ देते हैं व्हाट इज परसिस्टेंट डेटा इन जावा। तो जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं इन कंसेप्ट ऑफ फाइल्स, उसे हम लोग परसिस्टेंट डेटा भी कहते हैं। और फाइल बेसिकली होता क्या है कि हार्ड डिस्क के इन अ पर्टिकुलर एरिया किसी एक एड्रेस पे आपका जो डेटा है या कलेक्शन ऑफ डेटा जो है, रिलेटेड डेटा जो है, उसको हम स्टोर कर रहे हैं, वो फाइल कहलाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है समझिएगा। अ रिकॉर्ड इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल फील्ड्स। अभी हम लोग नेक्स्ट इमेज में भी इसे देखेंगे कि बेसिकली मेरा जो एक रिकॉर्ड है वो कई फील्ड को बना से मिलकर बना होता है। फील्ड्स जो है वो कई कैरेक्टर से मिलकर बने होते हैं। एक कैरेक्टर जो है वो बेसिकली हमारा यूनिक और कैरेक्टर होता है 0 और 1 का कॉम्बिनेशन। यहाँ देखिए, जो हमारी फाइल है वो बेसिकली कई रिकॉर्ड्स को कंटेन कर रही है और हर एक रिकॉर्ड जो है वो बेसिकली डिफरेंट फील्ड्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और हर एक फील्ड जो है वो मेरा वो मल्टीपल कैरेक्टर से मिलकर बना है और हर एक कैरेक्टर को कंप्यूटराइज सिस्टम में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग 0 और 1 यानी यूनिकोड कैरेक्टर का यूज करते हैं। 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से मिलकर जो बना है वो यूनिकोड कैरेक्टर उसके लिए।
आप जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो आपकी जनरल लैंग्वेज को नहीं समझ सकता है। आप और हम हिंदी में बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं। आप और हम इंग्लिश में बात करते हैं, समझते हैं। लेकिन कंप्यूटर जो है वो डायरेक्टली आपकी हिंदी या डायरेक्टली आपकी इंग्लिश या तमिल या मलयालम इसको नहीं समझ सकता। कंप्यूटर जो है वो किस फॉर्मेट में समझता है? 0 और 1 के फॉर्मेट में उसके जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, जो यूनिकोड कैरेक्टर फीड किए जाते हैं, वो केवल उसे ही समझता है। ठीक है? तो फाइल का जो सबसे लार्जेस्ट जो कंसेप्ट है वो ये कि एक फाइल जो है वो कई रिकॉर्ड से मिलकर बना है और इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो बाइट पे जाके खत्म होती है। ये इमेज ज़रूर याद रखिएगा। ज़रूरी नहीं डेटा आप वही लिखें जो इस इमेज में लिखा हुआ है, बट कभी भी एग्ज़ाम में अगर आप बैठते हैं तो आपको एग्ज़ाम में रिप्रेजेंट करने के लिए या किसी को एक्सप्लेन करने के लिए आप ये चीज़ें ज़रूर याद रखिए कि द फाइल स्टोर मल्टीपल रिकॉर्ड्स, ईच रिकॉर्ड कैन कंटेन मल्टीपल फील्ड्स एंड ईच कैरेक्टर इन द फील्ड इज a रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0 और 1 यूनिकोड कैरेक्टर। ठीक है? फाइल हैंडलिंग में बेसिकली आप क्या करते हैं? फाइल को क्रिएट करने का काम करते हैं। उस फाइल का कोई डेटा जो है उसको आप मैनिपुलेट करने का काम करते हैं। पहले हम लोग फाइल हैंडलिंग में इतना समझते हैं। क्या आप लोगों में से इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है कि फाइल हम लोगों ने क्यों यूज किया जब हमारे पास एरे और कलेक्शन था? वैष्णवी? यस सर, समझ में आ गया। अच्छा, ठीक है। ये बस एक दो लोगों से थोड़ा इंटरेक्ट कर लें कि किसी को समझ में आया कि नहीं। वैष्णवी, समझ में आया कुछ? क्यों यूज करते हैं हम लोग फाइल हैंडलिंग? जब हमारे पास एरे और कलेक्शन है तो क्यों ज़रूरत पड़ी फाइल की? शीतल? राजू? अदिति? यस सर। अदिति, हमारे पास एरे है, हमारे पास कलेक्शंस हैं, बट स्टिल वी आर यूजिंग फाइल्स। वाई डू वी रिक्वायर ए फाइल? सर बिकॉज वो कलेक्शंस ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं फाइल्स, और हम लोग का प्रोग्राम जब टर्मिनेट होता है तो डेटा लॉस हो जाता है। तो ठीक है, डेटा लॉस से बचाने के लिए फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। और फाइल क्या है? कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, एंड व्हाट आर द कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स? डेटा in the form of zeros and one. व्हाट इज अ fields. रिकॉर्ड? सर रिकॉर्ड्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ फील्ड्स होते हैं, आई करेक्ट। थिंक। एंड व्हाट इज अ फील्ड? Field is a group Collections of of unique is a group of characters. character यस सर। or basically in computerized format those are the group of Unicode characters. ठीक है? यस यस सर। ओके। सो इस इन दो स्लाइड्स में यही दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कि फाइल क्या है और ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है? अगला जो है ये कहता है कि फाइल में हम लोग कैसे ऑपरेशंस करते हैं। ठीक है? अब फाइल हैंडलिंग के जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें स्ट्रीम जो है उसका नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। स्ट्रीम बेसिकली एक पाथ होता है जिसके थ्रू एक इमेजिनरी आप उसको समझ लीजिए कि एक वर्चुअल पाथ जिसके थ्रू डेटा फ्लो करने का काम करता है। ठीक है? वो एक फ्लो करने का काम जो हुआ डेटा। अब आप इसको इस तरह समझिए कि एक पाइप हो गया या एक चैनल हो गया जहाँ पे इनपुट के लिए है स्पेस और आउटपुट के लिए है। ठीक है? तो बेसिकली जो डेटा फ्लो कर रहा है ये देखिए, फ्लो स्ट्रीम ये हो गया कि कोई एक सोर्स होगा। ठीक है? उस सोर्स से होकर डेटा जो है हमारे प्रोग्राम में एंटर करेगा। अब वो सोर्स कोई भी हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है। आपने कीबोर्ड पे कोई की प्रेस किया तो वो हमारे प्रोग्राम ने उसको रीड करने का काम किया। आउटपुट स्ट्रीम क्या हो गया? आपके प्रोग्राम ने जो भी डेटा एंटर किया गया उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया
और उसको या तो वापस स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दे, प्रिंटर पे भेज दे, तो ये हो गया डेस्टिनेशन. So basically the stream is a path along which data flows having some source and destination. Stream जो है एक path हो गया data flow के लिए having source and destination. ठीक है. So input जो है वो कीबोर्ड, माउस, मेमोरी, डिस्क, नेटवर्क कहीं से भी आ सकती है. आउटपुट कहाँ हम करते हैं? डिस्क पे करते हैं फाइल के फॉर्म में, मेमोरी में करें, प्रिंटर पे डायरेक्टली भेज दें या नेटवर्क पे उसको भेज दें, सो दैट इट कैन रीच टू सम अदर प्लेस विच आर कनेक्टेड थ्रू द नेटवर्क. अब जावा में स्ट्रीमिंग जो होती है वो दो तरह की होती है. देखिए, इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम. ठीक है. इनपुट स्ट्रीम बेसिकली क्या हो गया? टू रीड दैट डेटा. और आउटपुट स्ट्रीम हो गया टू राइट दैट डेटा टू डेस्टिनेशन. आप सोर्स से डेटा को रीड कर रहे हैं, इनपुट स्ट्रीम. जब आप डेटा को राइट कर रहे हैं तो ये हो गया आउटपुट स्ट्रीम. ठीक है. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है फाइल हैंडलिंग, आई अंडरस्टैंड, बट इसमें जो मेन चीज़ें हैं, जब आप लोग उसको थोड़ा ध्यान रखेंगे ना तो ईजी हो जाएगा. ज़्यादा चीज़ें है नहीं इसमें. फाइल हैंडलिंग में बेसिकली यही है कि ज़रूरत क्यों पड़ी, कैसे हम लोग करते हैं, सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, इनपुट स्ट्रीम क्या होता है, आउटपुट स्ट्रीम क्या होता है. ठीक है. और हर एक के केस में आपको किस तरह से डेटा फ्लो कर रहा है. थ्योरी बहुत ज़्यादा अगर मैं बताऊंगा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. तो इन बेसिक्स थ्योरी के बाद हम लोग पहले ना कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और उन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग, प्रैक्टिकल के थ्रू हम लोग एनालिसिस करेंगे कि हमारा जो है वो फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट कैसे काम करता है. ठीक है. तो नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग देखेंगे वो ये देखेंगे कि हम लोग फाइल को रीड कैसे करते हैं, किसी फाइल में राइट करने का काम कैसे करते हैं. इसके अलावा हम लोग ये देखेंगे कि फाइल जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं. रीड या राइट करने के पहले वो चेक कर ले कि फाइल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. इसके अलावा हम लोग ये देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्लासेस कि फाइल का यूज क्यों करते हैं, हम लोगों का इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम क्या है, रीडर राइटर क्या है. ठीक है. बफर रीडर, बफर्ड राइटर क्या है, प्रिंट राइटर क्या है, और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, क्लोज मेथड क्यों यूज करने चाहिए, बफर्ड इनपुट स्ट्रीम या बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम ही क्यों यूज करने चाहिए परफॉर्मेंस के बेसिस पे. ठीक है. सीरियलाइजेशन हम लोग अगला टॉपिक रहेगा, बट सीरियलाइजेशन ऑब्जेक्ट पे कैसे होता है ये हम लोग देखने का काम करेंगे. ठीक है. इसके अलावा क्रिएट डायरेक्टरी देखेंगे कि डायरेक्टरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं. बफर्ड इनपुट स्ट्रीम और बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम परफॉर्मेंस वाइज तो बहुत अच्छा है, बट इसका एक एक एग्जांपल भी देखना ज़रूरी है. इसके अलावा हम ये देखेंगे कि जिप फाइल कैसे क्रिएट करने का काम करते हैं, और इसी तरह के और भी कई चीज़ें जो है वो हम लोग फाइल हैंडलिंग में अगले क्लास में हम लोग देखेंगे. ठीक है. तो फाइल हैंडलिंग में दो चार चीज़ें याद रखिएगा. अभी ये स्लाइड में आपको अपलोड कर दूंगा, आप लोग एक बार इसके गो थ्रू कर लीजिएगा. ठीक है. और जो आज की क्लास है वो आपको मैं आज की क्लास का वीडियो जो है वो अपलोड कर दूंगा, वो आप लोग चेक कर लीजिएगा. ठीक है. नाउ क्वेश्चन आया पार्ट. आप लोगों की तरफ से अगर कुछ क्वेश्चन है तो बताइए. नो सर. नो सर. ठीक है. देखिए, अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप जितनी चीज़ें पढ़ रहे हैं उसमें आपको आने वाले लाइफ में जो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा